ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب, اب آتے ہیں اس معاملے پہ. آپ نے پرسوں کہا کہ یہ جو کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کا انڈین کنیکشن ہے, اور کل وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں یہ کہا کہ اس کی یہ بھارت ذمہ دار ہے اس دہشت گردی میں. تو جناب کمال نہیں ہو گیا, آج وزیر اعظم اور آپ دونوں ایک صفحے پہ ہیں, کمال کی بات. تمکنت میری بات سنو, کیا ہو گیا ہر جگہ وزیر اعظم اور میں ایک صفحے پہ ہو جائیں؟ کس میں کہ کیا اتنی آپ پریشان ہو جاتی ہیں؟ ہاں ایک بات تو صحیح ہے, نہیں بڑی نہیں خوشی کی نہیں بات خوشی کی ہے. بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو تو گئے ہیں, مگر جنرلی اسپیکنگ میڈیا کو اور حکومت کو ایک صفحے پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میڈیا حکومت کے ساتھ مل جائے, ایک صفحے پہ آ جائے, تو آپ سمجھیے کہ میڈیا فارغ ہے. میڈیا کا کام ہی ہے کہ ایک تنقیدی جائزہ لینا حکومت کا. یہ بلٹ ان, اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں فورتھ پلر, انڈیپینڈنٹ پلر. تو یہ آپ نے مجھے اب ان کو ایک ہی کر دیا, میرا خیال ہے یہ بڑی ایک اسپیشل اوکیزن ہے. مگر پھر بھی میں آپ کو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں, جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ شاید ابھی بھی ہم ایک صفحے پہ نہیں ہیں. عرض یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب باہر ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں, اور جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں. اور وہ انفیکٹ الزام یہ نون لیگ کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی لگاتے ہیں کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں ان کے لیڈرز تو وہ ایک بات کہتے ہیں, جب پاکستان آتے ہیں تو کوئی اور بات کہتے ہیں. اس سچویشن میں آپ نے یہ جو انڈیا والی بات کی اور دہشت گردی کی یہ بات ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے پاکستان گورنمنٹ نے کیس کیا تھا ہیر بیار مری کے اوپر, جو کہ خیر بخش مری کے صاحبزادے ہیں اور لبریشن آرمی کے ایک لیڈر ہیں, اور وہ لنڈن میں رہتے تھے. اور انہوں نے ایکسٹریڈیشن کے لیے ان کو پروسیڈنگس کی کورٹ میں. وہاں ہیر مری صاحب کے جو وکیل تھے, انہوں نے عمران خان صاحب کو کہ ان کو واپس پاکستان بھیجا جائے, کیا جائے, واپس لایا جائے ان کو, اور یہ ٹیررسٹ ہے. تو ان کے وکیل نے عمران خان صاحب کو بلایا ایز وٹنس, اور ان سے پوچھا, اور وہ پورا ایک مضمون ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے, دکھا دیجئے ہمارے ویوز کو, کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ان کے بارے میں. ان کو یہ پوچھا کہ اگر آپ ہیرویار صاحب کی جگہ پہ ہوتے تو کیا آپ ہتھیار اٹھاتے ریاست کے خلاف, پاکستان کے ریاست کے خلاف. اور عمران خان صاحب نے کیا کہا, موٹی بات میں کر دیتا ہوں, باقی آپ ترجمہ کر کے بتا دیجئے اس مضمون میں کیا لکھا ہے. عمران خان صاحب نے کہا, دیکھیے میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا اور میرے بھی راستے بند کیے ہوتے سب نے, میں پارلیمنٹ نہ جا سکتا, میں الیکشن نہ لڑ سکتا, اور تشدد ہو رہا ہوتا بلوچستان میں, یہ انہوں نے کہا, تو میں بھی شاید, اور میرے پاس راستہ کیا ہوتا, میں یہی کرتا. تو بات یہ ہے کہ بات وہی آتی ہے کہ باہر آپ کچھ کہتے ہیں اور اندر آپ کچھ کہتے ہیں. تو میں بس اتنی بات کہنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہہ دیں یا ریولیوشنریز کہہ دیں, ریاست ان کو ہمیشہ ٹیررسٹ ہی کہے گی. یہ ایک اصول ہے دنیا کا. اسی لیے ہمارے فریڈم فائٹرز کشمیر میں ان کو ہندوستان ٹیررسٹ کہتا, اور انڈین بلوچ کو سپورٹ کرتے ہیں, بلوچ کو یہاں ٹیررسٹ کہتے ہیں, وہ ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا اس پہ اوپر. مگر جب آپ حکومت پہ ہوتے ہیں یا ریاست کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ریاست کی پوزیشن لینی پڑتی ہے. اور عمران خان صاحب اس وقت تو نہیں تھے, اس لیے انہوں نے ریاست کی پوزیشن نہیں لی, انہوں نے کوئی اور پوزیشن لی, اور اب وہ ریاست میں, اب ان کو ریاست کی پوزیشن لینی پڑ رہی. یہ خان صاحب کا تو یہ بڑا ہے نا کہ ماضی میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ تو ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ ہر وقت ان کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ شعر بھی ان پہ چلتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ ہے. آپ تو یہ باتیں تو یاد آپ سے کراتے رہا رہے. نہیں گیا نا, آپ نے تو شعر ٹھوکتا ہی تھا یہاں. یہ ویسے بڑا ان کے لیے یہ شعر استعمال ہوتا ہے, یہ میں نے کوئی نیا نہیں نکالا. اچھا آپ نے اب انڈیا کی بات کی, تو آپ نے پہلے کہا یہ کہ یہ جو چائنا انڈیا بارڈر پہ ہو رہا ہے تو انڈیا تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اور اس کے خلاف وہ کیا کرے گا, چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو جناب والا آپ کے لیے یہ خبر ہے کہ انڈیا نے چائنا کا منہ توڑ جواب دیا ہے. دیکھیں ذرا آپ. Suddenness
The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. And this is Naya Bharat, viewers. The new India. तो जनाब उन्होंने तो कोई 59 एप्स, चाइनीज एप्स जो सी हैं वो बैन कर दी। अब इससे बड़ी कार्रवाई मुझे बताएं कोई हो सकती है भला? वाह जी वाह, कमाल हो गया। और वो देखिए उनके एंकर, वो किस तरीके से उन्होंने पूरा ड्रामा खींचा कि हमने आए, वो पूरा जहाज का जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होता कि हमने आके और ऐसी अटैक की है चाइना के ऊपर, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ है। कमाल कर दिया हमने, उनकी एप्स जो है उनको बैन कर दिया। अच्छा बाय द वे, अच्छा ये देखिए आप सोचिए कि हमारे यहाँ भी मतलब बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़ी बड़ी वो सेम पेज पे हुकूमत के होते हैं, मगर ये और वो पुराने ज़माने में कहते थे इंडिया का मीडिया बड़ा आज़ाद है। इंडिया का मीडिया तो मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही पिट्ठू मीडिया है। आई एम सॉरी टू से दैट, ज़ाहिर है एक्सेप्शंस तो हैं वहाँ भी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मगर और ये जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं बाय द वे, अब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी 3-4 रह गए हैं, सारे बाकी सारे फारग हो गए। इतनी बड़ी मुल्क के अंदर इतना बड़ा मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया बन गया, और वो कॉर्पोरेट मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को सपोर्ट करता है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। तो बड़ी अफसोस की बात है। ये जो ऐप इन्होंने जो बैन की है, ये टिकटॉक जिसका सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये बड़ी ऐप पॉपुलर है। अच्छा अब ये है कि अभी लेटेस्ट खबर यही है कि टिकटॉक वाले कह रहे हैं कि जी हम तो अब नेगोशिएशन करने जा रहे हैं इंडिया के साथ, और इंडिया की हुकूमत ने बुला लिया उनको, आइए आइए बताइए क्या। इंडिया की हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये किया है कि आप जो डेटा लेते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए, सारा इंडिया का जो लोग इसको देखते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, उनके बारे में जो सारा डेटा है वो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है इंडिया के लिए। ये पहले नहीं होश आई, अब आई है होश, या अब सोचा कि कोई एक्सक्यूज़ भी देना पड़ेगा, और इसलिए उनको बुला भी लिया है कि आइए हमसे बात करें। अब ये नेगोशिएशंस होंगी, मेरा ख्याल है कुछ अर्सा इसको चलाएंगे, और फिर जब इंडिया चाइना के बाकी इश्यूज जो हैं वो थोड़े बहुत ठंडे पड़ जाएंगे तो फिर शायद रिस्टोर भी कर दें। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार की पिटाई करनी थी, अवाम ने अगर तजारती ताल्लुकात वो तोड़ लेते। ये तो टिकटॉक बंद करने पे इतना वहाँ एहतजाज हो रहा है, रो रहे हैं वो टिकटॉक स्टार्स, और अपनी बना के वीडियोस लगा रहे हैं, रो रहे हैं बाकायदा, इतना एहतजाज हो रहा है टिकटॉक बंद करने। यहाँ हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बनने वाली एक वीडियो का मामला और जनूबी पंजाब का मामला। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा जनाब, ये जो जनूबी पंजाब का चक्कर है कब से चला हुआ है? अब वो पंजाब का जो बजट पास हुआ है, साथ उन्होंने उनकी कोई पैसे भी दिए हैं, और कोई सेक्रेटेरिएट है जिसमें तैनातियां भी हुई हैं। इधर नून लीग की मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं, सूबा चाहिए था। हमारा कानून साजी जो हमारा बिल जमा हुआ है कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब का, उस पर कानून साजी क्यों नहीं करती हुकूमत? तो ये बताइए कि ये सीरियस हैं, ये पहला कदम ले रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट पहले बनाते हैं फिर सूबा बनाएंगे, या वाकई ये बस एक आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है? बिल्कुल बिल्कुल जो आप सही कह रही हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए इन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाई है, 1.5 अरब रुपया उसके लिए बजट रखा है। 1.5 अरब, और प्रेसिडेंसी का बजट जो है वो पता नहीं कितने अरबों में है, जहाँ काम ही कोई नहीं होता सिवाय खाने पीने की। अच्छा और मुझे ये बताइए, ये सेक्रेटेरिएट का सिर्फ ये एक जैसे कहते हैं ना कि उनको जी अब आप वहाँ जाया करें अपने मसले हल करने के लिए, हमारे यहाँ ना आया करें। और वहाँ पैसे कोई नहीं है, वो एक किस्म का पोस्ट ऑफिस बना दिया वहाँ। और ऊपर से मैं आपको बताऊँ एक और इलीगल काम कर रहे हैं ये, जो कि चैलेंज होना चाहिए। ये जो अब मैं नोटिफिकेशंस देख रहा था, ये जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वहाँ, 2-3 सीनियर अफसर इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी और इस लेवल के और IG लेवल के इन्होंने लोग वहाँ पोस्ट किए हैं। पता क्या लिखा है उसके ऊपर? उसके ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं लिखा डिस्ट्रिक्ट फलाना या ये बहावलपुर या ये वो, क्योंकि पंजाब एक सूबा है ना तो सारा वो, उसको लिख दिया साउथ पंजाब। अरे भाई साउथ पंजाब तो ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है। कौन सी बाउंड्री है साउथ पंजाब की? कोई उसकी डिलिनेशन है कि ये साउथ पंजाब है, ये सेंट्रल पंजाब है, या
पंजाब की हुकूमत के अंदर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो साउथ पंजाब आपने कहाँ से लिख दिया? इलीगल। आप लिखे बहावलपुर में आपने बनाई है, आपने मुल्तान में बनाई है, आप लिख दें, मगर ये आपने साउथ पंजाब क्यों लिखा उसमें? साउथ पंजाब जैसी चीज़ कोई नहीं है इस वक्त। तो वो तो नोटिफिकेशन इटसेल्फ इलीगल है, उसको चैलेंज करना चाहिए इन लोगों को, जिनके ये काम है। तो और ये बिल्कुल ये ड्रामा है सारा, और कुछ नहीं है। वो सही कह रही है, अगर करना है तो आइए सेनेट में आए और नेशनल असेंबली में आए, बैठ के अपोजिशन के साथ कोई बिल बनाए और करें, मगर नहीं करेंगे। ये ड्रामे ही चलते रहेंगे, पता नहीं आवाम बेचारी का क्या बनेगा जो ड्रामे देख रही है। अच्छा, अब आते हैं हम इस इशू पे, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक इश्तियाल अंगेज वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत जमा की कि मेरे खामद के लिए ये आ रही हैं कत्ल की धमकियाँ, और क्योंकि कुछ बहुत जो ताकतवर लोग हैं वो उनसे खुश नहीं हैं, तो इस तरह से ये हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुबह मोटो नोटिस लिया, और वो इफ्तिखार साहब, जो आगा इफ्तिखार और एक जिन्होंने वीडियो बनाई है, उन दोनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने FIA को 7 दिन का जिस्मानी रिमांड वो दे दिया। वो पहले भी वैसे FIA के पास थे जब वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखार साहब ने एक माफ़ीनामा जमा करा दिया। तो ये बताएं, सवाल ये है कि क्या ये माफ़ीनामे पे बात ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि बात छोटी नहीं थी। उन्होंने सियासतदानों के साथ साथ एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ये बात की, साथ 2 सहाफ़ियों को भी लपेट लिया, मगर एक जज के खिलाफ इतनी बड़ी बात करना, क्या बस एक माफ़ीनामे पे उनकी माफ़ी हो जानी चाहिए? नहीं, देखिए, उन्होंने माफ़ीनामे के साथ ये कहा कि जी मैं तो एक प्राइवेट बात कर रहा था, मुझे नहीं पता किसने ये वीडियो ली है, और मेरी तो कोई इजाज़त नहीं थी, और ये तो प्राइवेट बात थी, उसमें तो कोई बड़ी बात ही कोई नहीं थी, और मैं प्राइवेट बात होती है, ये पब्लिक होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये किसी ने ये कर दिया। देखिए ना, ये सरासर झूठ है, और इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जिन साहब ने वीडियो बनाई है उनको भी धर लिया ना FIA ने, तो पता चल जाएगा कि ये इसके पीछे क्या साजिश थी। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, पता चल भी जाएगा तो होगा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट या तो ये खुद फैसला करे कि, क्योंकि FIA ने कुछ नहीं करना इनके खिलाफ, ये बातें जो होती हैं ना इस किस्म के लोग जो करते हैं, तो ये अपने पास